You can start from there. Sure. Look closely at nature. Every species is a masterpiece exquisitely adapted to the environment in which it has survived. Who are we to destroy or diminish biodiversity? Biodiversity is the most valuable but least appreciated resource. Good afternoon, one and all. I, Fanindra, on behalf of Symbiosis International University, welcome you all to the discussion on biodiversity in Eagle Nest Wildlife Sanctuary. Eagle Nest Wildlife Sanctuary is a protected area of India in the Himalayan foothills of West Kameng district, Arunachal Pradesh. Eagle Nest is notable as a prime birding site due to the extraordinary variety, numbers, and accessibility of species. Eagle Nest derives its name from the Red Eagle Division of Indian Army, which was posted in the area in the 1950s. Now, I would take the privilege of introducing the speaker for today's discussion, Ms. Shalina Finia, Forest Production Squad in Eagle Nest Wildlife Sanctuary and wildlife filmmaker. Shalina is one of the members of Forest Protection Squad in Eagle Nest Wildlife Sanctuary, Arunachal Pradesh. After completing her 12th, she joined Saint Xavier College, but unfortunately, she could not complete her studies due to some unavoidable family circumstances. In 2017, she was selected in Xingsheng Bugan Community Reserve as a patrolling SWAT. During that time, she got to know about the Green Hub Video Documentary Center, where she applied for a fellowship and got selected and learned about the photography and videography. Her interest in nature grew day by day, and she started to understand the interrelationship of human and wildlife and how it is adversely affecting the vulnerable diversity around. So then she decided to do whatever she could do to save the nature and wildlife, and later where she successfully completed her fellowship and continued her work. So now I would invite Ms. Shalina to take over the session. Welcome, ma'am. First of all, I would like to say thank you to Symbiosis Biodiversity Cell member, and my English is not good, so I'm more comfortable in Hindi. So my presentation will That's be about fine. That's Hindi. fine. So मैं सलीना फिनिया हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और जैसा कि आज का मेरा प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी इन ईगलनेस है, लाइक बायोडाइवर्सिटी बोलने से इतना बायोडाइवर्सिटी से रिलेट नहीं है, इसमें जरा जैसा हम लोग कंजर्व कर रहे हैं उसके बारे में है। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। लाइक मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, तो नेक्स्ट ये मेरा विलेज है, सिंचुंग विलेज, जो कि अरुणाचल प्रदेश वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। और नेक्स्ट ये हमारा कम्युनिटी, बुगुन कम्युनिटी। ऐसा तो बहुत कम लोग ही जानते हैं हमारे कम्युनिटी के बारे में, तो मैं अपना कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बताऊंगी। जैसा ये हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है। पहले तो हर कोई इसको ही पहनते रहता था, अभी लाइक चेंज हो गया। हम लोग बस ओकेजनली ये ड्रेस को पहनते हैं। और ये उस समय का पिक्चर है, 2018 को हमारे यहाँ पे फम को फेस्टिवल हुआ था। तो फम मीन्स हिंदी में बोले तो पहाड़, और खो मीन्स रिवर। तो लाइक हम लोग नेचर को बहुत मानते हैं। और जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ये इन्होंने जो हेड क्राउन पहना है वो भी हम लोग बैम्बू से बनाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि हम लोग नेचर से कितना कनेक्ट है। और ये जो लेडी है हमारा विलेज का सबसे ओल्डेस्ट लेडी है। और लाइक हम लोगों को ऐसा हो रहा है कि हम लोग का कल्चर ट्रेडिशन सब धीरे धीरे कम हो रहा है। लाइक हम लोग को अपना कल्चर के बारे में पता नहीं। और साथ ही हम लोग का जो बुगुन डायलेक्ट है, हम लोग का एक अलग डायलेक्ट है जो हम लोग यूज करते हैं बात करने को, वो भी खत्म हो रहा है। तो लाइक डायलेक्ट के लैंग्वेज के ऊपर तो हर कोई काम कर रहा है, बट इस इनका ये है कि जो हमारे यहाँ पे माउथ हब बजाते हैं, ये सिंगल लेडी है जिसको आता है। तो जैसा हम लोग का यूथ
लोग इतना इंटरेस्ट नहीं है ये सब कुछ सीखने के लिए, तो वो मतलब उसको लेके थोड़ा इन फ्यूचर हम लोग का ये फ्लोक सॉन्ग हो गया ये सब खत्म होने का चांसेस है। और साथ ही जैसा मैंने बताया हम लोग का रिलीजन में मानते हैं जैसा फम मीन्स पहाड़, ये एक व्यू है लामा केम से मैंने लिया है, ये गलनेस में ही पड़ता है। और ये रिवर, और जैसा मैंने बताया कि हम लोग नेचर को इतना मानते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम लोग के यहाँ हंटिंग नहीं होता था। नेचर को अपना मतलब एक गॉड नहीं, हम लोग नेचर को ही गॉड मानते हैं, पर भी हम लोग के यहाँ हंटिंग होता था। तो हमारे यहाँ अपने दलाई लामा जी आए थे, तो उन्होंने बताया कि लाइक 1997 को हंटिंग करना बंद कीजिए, वो अच्छा नहीं है, लाइक उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा उन्होंने बताया। तो जितने लोग को मतलब वो चीज को एक्सेप्ट करना था उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, पर बहुत से लोग ऐसे भी था जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और ये हम लोग का जो फेस्टिवल होता है वहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस होता था। तो जब 1997 में उन्होंने बताया, उसके बाद ये लास्ट पिक्चर है जब हम लोगों ने एनिमल सेक्रीफाइस किया, उसके बाद से हम लोगों ने एनिमल सेक्रीफाइस करना बंद कर दिया। नेक्स्ट ये जैसा कि बता रहे, हंटिंग हंटिंग टोटली बंद होने का रीजन ये एक छोटा सा बर्ड है जो कि बुगुनलिया चिकला। लाइक जब इसके ऊपर काम चला और इनको जब डिस्कवर किया, तो इनका नाम हमारे कम्युनिटी के बेस पे रखा बुगुन। उसके बाद लियो चिकला एक स्पीसीज है इनका, तो इनको डिस्कवर किया रमन अथरा जी ने। तो लाइक हमारे यूथ को नेचर के ऊपर कैसा काम करना चाहिए, लाइक आप लोग के पास इतना अच्छा नेचर है आप लोग के विलेज के पास, पर आप लोग उसको नहीं देखते, ये सब लाइक हम लोगों को बहुत समझाया इन्होंने। और हम लोगों के लिए लाइक बुगुन बहुत अननोन था, तो उसको आगे में लाइक एक लियो चिकला के थ्रू से इन्होंने हमारे बुगुन कम्युनिटी को आगे एक स्टेप दिया। और ये हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, हमारे यहाँ यहाँ पे हंटिंग ये सब तो होता था। लाइक अभी के डेट में हम लोग प्रिजर्व करना शुरू किया, ये रिसेंट पिक है। पहले यहाँ पे टिम्बर कटिंग ये सब बहुत चलता था, तो अभी वो सब बंद होने के कारण से लाइक हमेशा आपको ऐसा ग्रीन व्यू देखने को मिलेगा, ये एक व्यू पॉइंट है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया जैसा हमारे यहाँ पे और भी ऐसा बहुत स्पीसीज है जो पाया पाया गया। जब उन्होंने बताया कि बोगनविलिया चिकला है, तो बहुत लोग रिसर्चर लोग भी आए यहाँ पे काम करना शुरू किया, तो ये बहुत सारा स्पीसीज है जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है। और बहुत ऐसा स्पीसीज भी है जो न्यू डिस्कवर किया, जैसा ये पिट वाइपर, जॉर्डन पिट वाइपर, ये भी न्यू डिस्कवर हुआ है। उसके बाद ये दार्जिलिंग दार्जिलिंग ये 10 10 इयर्स के बाद इसको रीडिस्कवर किया है, मतलब 10 इयर्स तक पता नहीं था कि ये कहाँ है, इसको रीडिस्कवर किया गया है। और साथ ही ये लाइक इसका 1874 को इसको दिखा था, उसके बाद दोबारा यहाँ पे रीडिस्कवर किया है। मतलब इतने साल तक वो कहाँ था वो किसी को पता नहीं। और ये सॉरी इसका नाम बम्पू लिटिल फ्रॉग है, लाइक इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है। इसको ईगलनेस के अंदर में डिस्कवर किया है, और इसका नाम वहाँ पे जो कैंप है, कैंप के बेस पे ही इसका नाम रखा है बम्पू लिटिल फ्रॉग। और नेक्स्ट मतलब हमारे यहाँ पे इतना स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को पाया जाने का रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे लाइक सी लेवल से लेके हाई पीक तक आपको फॉरेस्ट दिखने को मिलेगा, तो इसलिए इतना सारा आपको बायोडाइवर्सिटी दिखने को मिल रहा है हमारे यहाँ। और ये एक मैप है जिसमें लाइक हम लोग का एरिया दिखाया गया है जो बहुत ही छोटा है। और जो हमारा एरिया पड़ता है वो कमिंग रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर पड़ता है। यहाँ है एकलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सेरगांव सेरगांव के अंदर आता है। और
जहाँ तक लाइक बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बुगुनविले चिकला जो डिस्कवर किया है उसको ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर डिस्कवर किया है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो वहाँ पे जो कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे उसको डिस्कवर किया गया था। तो उसको डिस्कवर करने के बाद लाइक हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन लोग ने को पता चला, उन लोगों ने काम करना शुरू किया। बहुत सारे रिसर्चरों के साथ जाके अपना बाउंड्रीज को मैपिंग करना शुरू किया उन लोगों ने। और साथ ही लाइक उन लोग प्रैक्टिकली भी जाते थे और अपना बाउंड्रीज को देखते थे। और ये 2013 को हमारे यहाँ पे गुरुंग रोड एक एरिया है, रिजर्व एरिया, उसमें रेड पांडा को भी पाया गया है। तो इसके बेस में हम लोगों Shalina, का। can I ask यस मैम। one question? Community forest, does it mean something like sacred grove? कम्युनिटी फेयर्स मींस लाइक वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नहीं है। लाइक हम लोग का लैंड कुछ ऐसा है कि लाइक हाफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है और हाफ हम लोग का अपना जैसा हर किसी का लैंड होता है। लाइक मेरा ये होम, मेरा लैंड है, ऐसा टाइप से हम लोग का वही रहता है जहाँ पे वो लोग पहले खेती करते थे। Acha. So this Bugunleo Chikla is found only inside this community forest, not. रिजर्व, हाँ, नोट से। And is it really true that they are only in 15 or 20 in numbers right now? यस मैम। हाँ, अभी लाइक जब 2006 को मिला था तब उसका 8 पेयर्स ऐसा कुछ इंटीमेट किया गया था। और अभी 2021 में उसका पॉपुलेशन लाइक इतना जल्दी ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसका अभी 20 तक है ऐसा माना जा रहा है। Bees, that's it. In whole यस world, सर। यस only सर। bees, 20 20 पेयर्स। birds. यस सर। That's यस सर। that's really amazing. And what is the population of your tribe, Bugun tribe? 3000 Okay, लाइक इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये आगे आगे बताऊंगी मैं, मैंने प्रिपेयर yeah, किया था ठीक उसके है, लिए ठीक भी। है. हाँ। Okay, you हाँ carry हाँ। on. Sorry. ओके। और जब उन लोगों ने लाइक हमारे फॉरेस्ट में इस तरह का लाइक स्पीसीज है, मैमल्स है, बर्ड्स है, उन लोगों ने तब मतलब डिसाइड किया कि लाइक हम लोग का कंजर्व एरिया बनाएगा। तो वो लोग इंडिविजुअल पर्सन को भी जाके मिले। तो उन लोगों ने कहा कि लाइक 79% का कहना ऐसा था कि ये हमारे इकोसिस्टम को बचाएगा, लाइक फ्यूचर जनरेशन तक वाटर रिसोर्स रहेगा, हम लोगों का वाटर रिसोर्स का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और 32% का कहना ये था कि ये हमारा कल्चर को बचाएगा अगर हम लोग ये स्टेप लेते हो तो। और 32% का ये था कि ये बर्ड हम लोग के लिए एक प्राइड है, like जो बोगनवेलिया चिकला है। और 2012 पे इसका एक नेशनल स्टेम बना गया था। और जैसा कि मैंने बताया हम लोग का यहाँ पे इतना मैमल्स स्पीसीज ये सब है, पर एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा लाइक हर जगह में ट्रेकिंग रहता है या कोई टाइगर रिजर्व जैसा टाइगर के लिए स्पेशली माना जाता है। हम लोग का यहाँ पे बर्ड्स के लिए, जैसे आपको दूसरा जगह में भी बर्ड्स दिखने को मिलेगा, पर हमारे यहाँ पे बर्ड्स का पॉपुलेशन ऐसा मतलब हर एक जगह में आप देखोगे आपको कोई ना कोई बर्ड्स दिखने को मिलेगा। ये रोहन रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था ये एक लाइक कार्टून। जैसा कि ये नॉर्मली आप दूसरे जगह में आपको ऐसा दिखना पड़ेगा, पर अगर नॉर्थ ईस्ट हमारे जगह में आएगा तो आप ऐसा पागल हो जाओगे लाइक बर्ड्स को लेके। और बुगनविलिया चिकला बस नहीं, उसमें और 5 रेयर स्पीसीज है जिसको देखने के लिए लाइक आउट कंट्री से भी बहुत लोग आते हैं। और ये बर्डिंग टूरिज्म को चलाने वाला ये हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन है इंडी गुलोची। लाइक इन्होंने स्टार्ट किया ये बर्डिंग टूरिज्म को चलाना शुरू इन्होंने किया। और जैसा कि मतलब डिसाइड किया कि हमारे यहाँ पे ऐसा प्रोटेक्शन एरिया बनाएगा तो उसमें यूथ लोग का जरूरत तो पड़ेगा। लाइक उन लोग मुंह से कह देगा कि ऐसा हंटिंग बंद करना है, यहाँ पे ऐसा पाया जाता तो कोई
मानेगा नहीं, करने वाला तो करेगा। जैसे दलाई लामा जी ने भी आके तो बताया था, पर जिनको मानना था उन्होंने माना, पर हर कोई तो नहीं माना। इसलिए उन्होंने 9 बॉयज को सिलेक्ट किया और उनको ट्रेन किया सेल्फ डिफेंस के लिए, और साथ ही उनको मैपिंग ये सब के बारे में भी बताया। वो लोग में ये एक पर्सन है जो मतलब हंटर है, ये भी एक लाइक इनका कहना ये है कि वो पहले हंटिंग करते थे, बट जब से उन्होंने ये प्रोटेक्शन स्काउट ज्वाइन किया तब से उनका हंटिंग करना बंद हो गया। तो अगर अभी कोई और हंटिंग करते तो उनको दुख लगता है, लाइक वो इमोशनली अटैच हो गया, इनका कहना ये है। और जैसा कि हमारे यूथ जितने 9 लोग को सिलेक्ट किया उसमें सबका अपना अपना एक नॉलेज है। जैसा कि इनको प्लांट्स के बारे में नॉलेज है, अगर कुछ चोट लग गया है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कौन सा प्लांट को यूज करना चाहिए। और ये हमारे टीम का अर्जुन, इनका कहना है कि लाइक जहाँ पे बगुन चिकला पाया गया है उनका बॉर्न भी वहीं पे हुआ है, तो उनका मानना है कि मैं भी शायद गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया है कि वो बहुत इजीली पेड़ में चढ़ जाते हैं। इन फ्यूचर आगे जाके उनको ये काम करो, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करो, इसलिए उनको ये टैलेंट दिया है, उनका मानना ये है। और साथ ही इन लोग बहुत जगह जाके इन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, लाइक स्नेक रेस्क्यू कैसा करना है। और यूजुअली हमारे एरिया में अगर स्नेक देखा तो पहले मार दिया जाता था, पर जब से इन लोगों ने ट्रेनिंग लिया तो स्नेक किसी का लाइक आसपास कोई भी विलेज में आया तो वो लोग उनको रेस्क्यू करके अपनी हैबिटेट में छोड़ देते हैं। ये अर्जुन पिन्या है, लाइक इनका कुछ फोटोज है जो उन्होंने रेस्क्यू करके उनको रिलीज किया है। और हम लोग अवेयरनेस भी देते हैं अलग अलग जगह जाके। ये स्नेक लाइक किसी का मानना है अगर आपने स्नेक को चोट पहुंचाया तो वो आपको बदला लेने आएगा, ये सब लाइक एक मिथ है उन लोग का। उन लोगों ने हर जगह जाके ये सब को अवेयरनेस दिया है। और कुछ लोग पुणे जाके ट्रेनिंग लिया है एडवेंचर एक्टिविटी का, तो उनका ये ट्रेनिंग का कुछ पिक्चर्स है। और हमारे यहाँ पे जैसा हम मैंने बताया प्रोटेक्शन एरिया बनाया, तो वहाँ पे एक चेक गेट बनाया गया है जो हमारे बाउंड्री के पास में है। वहाँ पे लाइक 2 बॉयज हमेशा रहते हैं। अगर कोई अंदर गाड़ी जा रहा है फॉरेस्ट के अंदर तो वो लोग कुछ लाइक इलीगल गन्स ये सब लेके जा रहे हैं या नहीं, और आना जाना में उन लोग का हमेशा चेकिंग रहता है। लाइक 4 4 डेज का उन लोगों का ड्यूटी रहता है। और जैसा उन लोगों ने एडवेंचर एक्टिविटी का ट्रेनिंग लिया, आ करके वापस आके हमारे यहाँ पे उन लोगों ने ये चीज को शुरू कर दिया, तो बहुत से लोग आते हैं एडवेंचर का मजा लेने के लिए। और हम लोगों ने जो जो हम लोग को ट्रेन किया है बाहर में, तो जाके हम लोग अपने एरिया के बारे में सीखा है। तो हम लोग साथ ही वाइल्ड लाइफ के जो वीक होते हैं उसमें हम लोग रिसोर्स पर्सन और रिसर्चर को जाके हेल्प करते हैं, उन लोगों को बताते हैं स्नेक और स्नेक पॉइजनस नहीं होता है। और ये कुछ जो हम लोगों ने सीखा है वो उनको भी शेयर करते हैं अपना नॉलेज। ये पिक्चर्स है जो अपना अपना नॉलेज उन लोग स्टूडेंट्स को शेयर कर रहे हैं। और हम लोग ट्रैकिंग भी ले जाते हैं, ट्रेको पांडा लेक में उन लोगों को ट्रैकिंग भी कराते हैं। और ये कुछ एक्टिविटीज है जो नेचर को रिलेट हम लोग उन लोगों को एक्टिविटी करवाते हैं। और हम लोगों का ये जो एरिया को प्रोटेक्ट करने का डिसीजन था उसमें सेरगांव फॉरेस्ट डिवीजन के जो डी वो थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट दिया हमें। और मैं अब मेरा जैसा मेरा अभी इंट्रोडक्शन में बताया 2017 को मैंने ये टीम ज्वाइन किया। और जैसा वेस्ट कमिंग से मैं फर्स्ट लड़की हूँ जिसने लाइक ये फील्ड में ज्वाइन किया है। मेरा ऐसा
साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ और मुझे इतना नॉलेज नहीं है सब का चीज का, पर ये कि नेचर से कनेक्ट थी मैं पहले से। लाइक कोई हंटिंग करते तो बुरा लगता था सुनने को, पर जब ये टीम में ज्वाइन किया तो उससे और कनेक्ट हो गई हो। अभी के डेट में तो अगर कोई हंटिंग का बात भी करते तो लाइक उनको डांटने को दिल करता है, ऐसा हो गया। तो उनके द्वारा मुझे ग्रीन हब, जहाँ पे आपको नेचर के बारे में बताता है, लाइक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री, ये सब सिखाते हैं, तो मैंने वहाँ पे अपना फिल्मिंग ट्रेनिंग लिया ये। और वहीं पे ही हम लोग का जो हम लोग को अलग अलग वर्कशॉप देते हैं, तो उसका एक क्लिप से, जैसा मुझे नामेरी लेके गया था, मेरे लिए बहुत न्यू था क्योंकि इससे पहले मैं कहीं नहीं गई थी। तो वहाँ पे मैंने लाइक बहुत अलग ऐसा बर्ड्स भी देखा जो मुझे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। और ये मेरा प्रोजेक्ट का समय है। जैसा मुझे मैंने मेरा ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद मुझे कहा गया कि एक फिल्म बनाना है, तो तुमको अपना फिल्म क्या बनाना चाहोगे। तो मुझे लगा कि जैसा मैं अपने कम्युनिटी से फास्ट गर्ल हूँ और लाइक फिल्मिंग के लिए, हमारे यहाँ के लिए तो ये एक बहुत अलग ही फील है क्योंकि कोई ऐसा फिल्म इससे पहले नहीं गया है। तो जैसा मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने बुन बुन के ऊपर ही फिल्म बनाऊं, क्योंकि 2006 को बुगुन लियो चिकला का डिस्कवर हुआ था, पर मुझे पता चला 2017 को, जब मैंने ये टीम को ज्वाइन किया। तो बहुत से लोग ऐसे ऐसे होंगे जिनको अभी भी पता नहीं होगा। तो एक फिल्म के द्वारा उनको ये चीज मैं शेयर करना चाहती थी। और साथ ही जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है उनको प्रिजर्व करने का इम्पोर्टेंस बताना चाहती थी। और जब मैंने बुगुनलियो चिकला फिल्म के ऊपर काम किया, मुझे ये चीज पता चला है कि जैसा बुगुनलियो चिकला का स्पीसीज कितना कम है, लाइक बहुत कम पॉपुलेशन है उनका। और तो मेरे दिमाग में मैंने ये रिलेट किया कि उनका कम है, साथ ही हमारा बुगुन कम्युनिटी का भी बहुत कम है। जैसा हम लोगों का डायलेक्ट भी इन डेंजर में आ रहा है, जिस तरह बुगुनलियो चिकला का इन डेंजर में आ रहा है, उसी तरह हमारा डायलेक्ट भी इन डेंजर में आ रहा है। तो मुझे लगा इससे ज्यादा बेहतर मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइक फिल्मिंग एक जरिया है सबको अवेयर करने के लिए। तो ये कुछ सूट है, लाइक मैं उन लोगों के साथ पेट्रोलिंग भी जाती थी और साथ में मैं अपना फिल्म के लिए भी शूट करती थी। और ये मुझे वहां पे जब मैं पेट्रोलिंग के लिए जाती हूँ तो मुझे कुछ मैमल्स दिखने को मिल जाता है, लाइक ये रेड फेस लियो चिकला है, ये बुगुन लियो चिकला जो स्पीसीज का है, वो ये भी वही स्पीसीज का, पर ये मिल जाता है दूसरे जगह पे भी। और ये कुछ सीजन वाइज हमारे फॉरेस्ट एरिया का फोटोज, देखिए ये यहाँ पे स्नो भी होता है। मैंने जैसे बताया सी लेवल से लाइक डायरेक्ट हाई पिक लेवल तक हमारा यहाँ का एल्टीट्यूड है, तो आपको स्नो भी दिखने को मिल जाता है। और ये हम लोग का यहाँ पे गेट बनाया गया है लामा कैंप में, ये आर्टिफिशियल गेट बनाया है। तो इसमें ये बताया कि जैसा दिखाया है इसमें बुगुनलियो चिकला और रेड पांडा यहाँ का एज अ मतलब प्राइड भी बोल सकते हो, जिसके कारण अभी हमारे यहाँ पे कंजर्वेशन शुरू हो गया। लाइक बहुत सारे यूथ इन्वॉल्व है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। हंटिंग करना हम लोगों ने पूरा बंद कर दिया है, और अगर कोई बाहर से भी आके हंटिंग करते तो उन लोगों को भी हम लोग रोकते हैं। वैसे थैंक यू। और ये प्रेजेंटेशन तो मेरा हो गया, और साथ ही जैसा मैंने बताया यहाँ पे कुछ बॉयज ऐसे थे जो हंटिंग करते थे पर उन्होंने अब बंद कर दिया। तो आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसमें एक बार्किंग डियर को डॉग्स लोग ने अटैक करके लाइक वो इंजर्ड था। तो 1 और 2 आवर के अंदर ही आके कैसा हमारे टीम ने उस डियर को ट्रीटमेंट होने के बाद फॉरेस्ट में रिलीज कर दिया।
मैं कर्नल प्रताप भानु एक वेटनेरियन हूँ और यहाँ आर्मी वेटनरी हॉस्पिटल दाहोंग में पोस्टेड हूँ। आज सुबह हमारे सैनिक जब पीटी परेड पर गए हुए थे तो उनको एक नाले में ऐसा लगा कि जैसे डॉग्स ने किसी एनिमल पे अटैक किया है। जब वो नाले में अंदर जाके देखा तो 6 डॉग्स ने एक बार्किंग डियर को, जो कि लगभग 5 साल का पूरी तरह विकसित मेल था, फिर इन लोगों ने दूर से चिल्लाने के बाद पत्थर फेंके और डॉग्स ने उसको छोड़ दिया, लेकिन हिरन जो है वो सदमे में आने की वजह से वहाँ बेहोशी की हालत में मिला था। फिर हम उसको अपने वेटनरी हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ फर्स्ट एड दिया, उसको कुछ इंजेक्टेबल्स दिए, फ्लूइड चढ़ाया और उसके बाद में एनिमल बहुत एक्टिव हो गया। फिर मैंने यहाँ पर जो सिंगचुंग विलेज बुगुन फॉरेस्ट रिजर्व के सेलिना फिन्या हैं उनसे कांटेक्ट किया कि आप रेस्क्यू टीम से हमारा संपर्क कराइए और इसके लिए क्या करना है वो आप हमें बताइए। बार्किंग डियर को देखा और फिर उनने उसको रिलीज करने के लिए पूरी टीम की तैयारी करने के बाद फिर से हमारे पास कांटेक्ट किया कि हम आज ही उसको जंगल में रिलीज करेंगे। फेस में लगा है। पेड़ को मत खोलो। तो आज ये 9 मार्च को जो हम लोग का कोऑर्डिनेटर है सेलिना फिया, तो उसने हम लोग को खबर दिया था कि एक आर्मी लोग ने एक डियर रेस्क्यू किया है, तो हम लोग को देखने आने के लिए बोला है। तो हम लोग यहाँ से देखने गया था लड़का हम लोग, तो देखा तो डियर को इतना इंजर्ड तो नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा चोट लगा था। हाँ, ये रख दो गाड़ी पे क्या। दो लोग ने अटैक किया तो हम लोग को इन्फॉर्म मिल गया, इसलिए बच गया। इनकेस वो अलग जगह में जाता तो ऑफ कोर्स वो हंटिंग करके किसी कोई लोग खा रहा होगा अभी उसको। अच्छा लगा। उसके बाद टीम मेंबर भी सपोर्ट किया, एक बार कॉल किया तो सब जितना लोग फ्री था सब रेडी हो गया आके। तो उसको एक वेटनरी डॉक्टर के साथ में हम लोग यहाँ लेके आलूबारी में ऐसे ही बांध दिया। यहाँ पानी से तो ऐसे तो भी पकड़ना पड़ेगा। उसको होल्ड को पकड़ लो। और हम लोग का ये रेस्क्यू करने का इक्विपमेंट सब भी नहीं था, फिर भी हम लोग ने रस्सी वस्सी लेके थोड़ा बहुत बांध के लेके आगे करतन में रखना। जम कर जम। पीठ पे रख दो। बस बस। हाँ बस। All the Fauji they just ride around. कर दो इसको कर दो। आलूबारी में आज रिलीज कर दिया। और लगभग 4 बजे ये काम पूरा उनके सहयोग से संपन्न हुआ, जिसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं पूरी फॉरेस्ट की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये भी आश्वासन देना चाहता हूं कि अपनी तरफ से आर्मी वेटनेरियन के तौर पे जो भी हेल्प जब भी वो मांगेंगे फ्यूचर में हम देते रहेंगे और उनका सहयोग भी हमें मिलता रहेगा। ये एक छोटा सा क्लिप था, आप देख सकते हो। एक हंटर लोग भी अगर उन लोग को वैल्यू पता चल गया तो उन लोग कैसे कनेक्ट होते हैं। और मैंने जो आप लोगों को पीपीटी दिखाया उसमें लाइक जैसा कि अभी सब लोगों को लगता है कि फॉरेस्ट के पास रहते तो उनको सब चीज का नॉलेज रहता है, लाइक फॉरेस्ट में जाना ये सब उन लोग का हैबिटेट रहता है। पर मेरे तरफ से मैं छोटी से इतना फॉरेस्ट में नहीं जाती थी,
लाइक मुझे फॉरेस्ट का नॉलेज नहीं था, इम्पोर्टेंस पता नहीं था, बट जब ये फील्ड में जुड़ा, जब काम करना शुरू किया, उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस पता चला। तो मैं अपनी तरफ से जितना हो सके ट्राई करती हूँ कि अगर कोई यहाँ पे कुछ बच्चे लोग स्टोन लेके बर्ड्स लोग के पीछे पड़ जाते हैं, तो उन लोगों को समझाने की ट्राई करती हूँ मैं। और साथ ही हम लोग कुछ अवेयरनेस भी रखते हैं, उसका भी मेरे मेरे पास फोटोज कम था दिखाने के लिए, लाइक इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। और इसमें पीपीटी में तो मैंने दिखा दिया कि आप लोग को हम लोग का यहाँ क्या क्या चल रहा है। और जैसा मैं बताऊंगी, मैंने 2018 को ही ज्वाइन किया है ये SPBCI टीम। तो तब मैंने देखा, जैसा हम लोगों का ऐसा रहता है कि यहाँ हंटिंग तो हम लोगों ने बंद किया है, पर हाँ, नियर बाय के जो विलेजर है वो लोग आके हंटिंग करना उन लोग ट्राई करते हैं। तो मतलब हम लोगों को जाके, लाइक बॉयज लोग को अगर उन लोग को आधा रात को इंफॉर्मेशन मिल गया, तो उन लोग को रात को भी जाके मतलब देखना पड़ता है कोई है या नहीं है। मतलब वो लोग अपने तरफ से पूरा एफर्ट देते हैं कि हमारे एरिया में हंटिंग ना हो और कोई लॉगिंग ना करे। उनकी तरफ से जितना हो सके वो अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं। Thanks, Alina. So I think you tried your best to give us the whole holistic picture of your community, your work. Huh? So I have many questions to ask, but let's keep the platform open. So students, you can open your videos and you can आप सेलिना को पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप इतनी यंग एज में आपकी कम्युनिटी से पहली लड़की हो जो ये कर रही हो। एंड आपने इसके बारे में अभी हमें कुछ बताया नहीं है, बट हमें पता है कि आपको बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा भी, और आगे भी पड़ेगा इन फ्यूचर। और फिर भी आप ये काम इतना डट के कर रही हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। वंडरफुल। तो स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हो, आपको अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क हर। And you can put the questions in the chat box as well if you are unable to unmute or put forward questions directly. So Salina, it looks like you and me, we have started this journey in wildlife in the same year. We also started our biodiversity work in 2018. You too, but you have started in very young age, and lots of whole journey ahead of you, I guess. So मुझे एक बात बताओ कि हंटिंग जो आप बोल रहे हो, पहले तो ये बस डेली जो आपका यूज है जितना उतना ही हुआ करता होगा ना पहले तो। क्योंकि इन इंडिया, इन मेनी एरियाज, हंटिंग ऐसा है कि जितना चाहिए उतना ही वो कम्युनिटी करती थी। ऐसे नहीं कि बहुत सारा कमर्शियल जैसे हंटिंग होता है, लाइक एक स्पीसीज पूरा खत्म ही होने वाली है, ऐसा नहीं होता। तो जितना उनको चाहिए उतना ही वो करते थे। तो ऐसा भी होता होगा ना आपके कल्चर में पहले, या आजू बाजू नॉर्थ ईस्ट के एरिया में? हाँ, ऐसा होता है। लाइक इन लोगों का ऐसा रहता है कि किसी का फेस्टिवल रहता है, उन लोग का एक लिमिट रहता है। और उन लोग ऐसा है कि कुछ लोग बर्ड्स को नहीं मारते हैं, बस उन लोग मैमल्स को मारते हैं। और कुछ लोग के पास ऐसा रीजन भी है कि जैसा अगर उन लोग हंटिंग नहीं किया तो वो लोग हमारे विलेज में आके अटैक करना शुरू कर देगा। कुछ लोग का कहना ये भी है। तो हाँ, उन लोग सेलिंग ट्रेडिंग ये सब के लिए नहीं करते, मतलब अपना यूज के लिए करते थे। अच्छा, या एंड आपका एक्चुअली रोल कैसा होता है जंग फॉरेस्ट में? जैसा मैंने बताया, मैंने 2018 को तो मैंने ग्रीन हब ज्वाइन कर लिया। तो मैंने लाइक 1.5 साल ग्रीन हब में अपना फिल्मिंग
ट्रेनिंग में ही कंप्लीट किया और अपना फिल्म बनाया द बबून एंड द लिटिल चिकला। उसके बाद वापस आके मेरा ये हो गया कि लाइक एज अ कोऑर्डिनेटर मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जैसा अगर कोई बाहर से रिसर्चर आ गया है, लाइक उनको कोऑर्डिनेट करके जो हमारा मेंबर है उनसे मिलाना पड़ता है। और साथ ही जो हम लोगों का ऐसा रहता है कि मंथली हम लोगों को पेट्रोलिंग करना पड़ता है फॉरेस्ट में जाके, क्या एक्टिविटी हो रही है वो देखना पड़ता है। तो उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है मुझे। तो हर मंथ का मैं रिपोर्ट प्रिपेयर करती हूँ। मैं लाइक सेरगांव फॉरेस्ट डिवीजन को देती हूँ। और जो एनजीओ हमारे ये जो सिंचुंग बुगुन कम्युनिटी रिजर्व बनाया है, जिन लोगों ने सपोर्ट किया उन लोगों को भी मैं अपना रिपोर्ट देती हूँ। तो उसके बेस में ही मेरा, और साथ ही पेट्रोलिंग करना पड़ता है कभी कभार। और अगर कोई फिल्मिंग के लिए आया तो उनके साथ मैं तो रहती हूँ। तो पेट्रोलिंग में आपको डीप फॉरेस्ट में भी जाना पड़ता होगा। हाँ, डीप फॉरेस्ट में भी जाना पड़ता है, वहाँ स्टे भी करना पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो इट मस्ट बी स्केरी। आपको डर नहीं लगता? नहीं मैम, क्योंकि फॉरेस्ट से लाइक इतना अटैचमेंट हो गया है मेरा भी कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। और आपके साथ फिर टीम कितना होता है जब आप अंदर जाते हो, रहते हो? हम लोग भी लाइक 2-3 बॉयज और मैं रहती हूँ। अच्छा, हाँ, और कोई अगर फिल्म मेकर आ गया तो उन लोग के साथ कुछ रहते हैं और साथ में मैं होती हूँ। ज्यादा से ज्यादा कितना किलोमीटर आपको चलना पड़ता है? यूजुअली बोलने से ये रिसेंटली मैंने मैपिंग के लिए मैं गई थी। तब तो मुझे सुबह का लाइक किलोमीटर तो पता नहीं, सुबह का 10 बजे से लेके हम लोग रात का 11 बजे तक चले थे। और एक्चुअली उसमें ऐसा हुआ था कि हम लोग मैपिंग के लिए जा रहे थे तो सबके लिए न्यू है वो फॉरेस्ट, और इतना डीप फॉरेस्ट में बहुत कम ही चलता है अभी तो कुछ लोग रास्ता भूल गए थे तो गूगल मैप के थ्रू से हम लोग जा रहे थे। Oh, अच्छा। So there is one question in the chat box. So प्रीतम पूछ रहा है आपको, what inspired you to be a part of this? आ, एक तो जैसा बुगुन चिकला, लाइक एक बर्ड, चलो वो ना बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते, फिर भी उसने हमारे कम्युनिटी को इतना आगे बढ़ा दिया। तो लाइक वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। तो वो बिना कुछ बोले ही उसने इतना ये कर लिया। तो मैं भी ट्राई करूंगी कुछ बोल के अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने के लिए। That's a wonderful aspect of what you are seeing through. Very nice. Yes, प्रियदर्शनी, आप पूछ सकते हो। Yes. थैंक यू मैम फॉर द सेशन। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप किसी को हंटिंग करते हुए पकड़ते हो या फिर वो हंटिंग करने जा रहा होता है तो वो एक थॉट के साथ जाता है, तो आप उनको ऐसे कौन से आर्ग्यूमेंट्स और रीजंस देते हो जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम उस चीज के करने का सोचे भी ना? आ, उन लोग इन लोगों का जैसा, मैं तो जनरली उन लोग के साथ नहीं जाती हूँ, पर जो बॉयज लोग हैं उन लोग समझाते कि, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे हंटर भी है जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता है कि किस तरीका से बताना चाहिए। तो वो लोग अपना तरीका से बताते हैं। और तब भी ना माने तो हम लोग के यहाँ पे कुछ रूल है, कुछ फाइन हम लोग लगा देते कि लाइक वो लोग उतना एफर्ट नहीं कर पाते, तो उन लोग को मजबूरन हंटिंग बंद करना ही पड़ता है। So Priyadarshini, it's not that easy. Yeah, that's true. Huh? And when जब ये ऐसे स्पेशली दिस ट्राइब्स होते हैं जिनके कल्चर में हंटिंग इज नॉट दैट बैड पहले से, जैसे मैंने अभी शुरुआत से बोला कि उनके लिए वो एक उनका डेली का हिस्सा हुआ करता था पहले, एंड वो जितना उनको चाहिए उतना ही हंट किया करते थे। तो somehow now poaching and other areas in wildlife trafficking and everything is putting pressure on wildlife. That's why it's really good to see that such smaller tribes who were very much dependent on hunting actually, and मुझे नहीं लगता कि उनका hunting इतना
अफेक्ट करता था जितना अर्बनाइजेशन और लॉगिंग, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर हैम्परिंग वाइल्ड लाइफ, लेकिन फिर भी दे आर टेकिंग whole lot of effort to stop that practice, to save biodiversity. वैसे So भी that's इतना इजी तो नहीं रहता है हंटिंग ये सब करने, जैसा हमारा कम्युनिटी में भी जो हंटिंग होता था, लाइक हम लोग 1997 से ट्राई कर रहे थे, अब 2018-19 में जाके रिजल्ट मिला, तो समझाना तो मुश्किल होता ही है। पर अगर हम लोग लाइक एक करते करते लाइक एक समझाएगा, दूसरा साथ बढ़ेगा, ऐसा करते करते एक कम्युनिटी साथ रहेगा, तो जैसा फॉरेस्ट बच ही जाएगा, हंटिंग करना बंद हो गई है। that's a wonderful hope she's having. So let's clap for her. Good. I have one more question from Pritam Roy. Yeah. Go ahead, Panita, Deepabhumi, you can ask your question. No, actually, there's a question in the chat box from Pritam Roy again. What if hunting is their only source of living or income? What's the alternative for that? जैसा कि चलो पहले जमाना में हम लोग का डेली सोर्स हंटिंग था, क्योंकि तब एक कल्चर ही था कि उन लोग के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। पर अभी के डेट में तो बहुत सारा ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि आप फॉरेस्ट में ही हंटिंग करके आपको खाना है, लाइक आपके लिए हर एक ऑप्शन है। जैसा बहुत पहले तो लाइक कच्चा मीट खाता था, अभी के डेट में तो नहीं खाते, सब लोग कुक करके खाते ही है, उन लोग को पता चल गया कुक करके खाना है तो। और अभी उन लोग फॉरेस्ट में जाके हंटिंग करके खाना ऐसा नहीं है, उन लोग के पास पहले मतलब अपना भूख के लिए, भूख मिटाने के लिए उन लोग करता था, पर अभी के डेट में ऐसा नहीं है, इसलिए हंटिंग बंद हो गया। उसके अल्टरनेटिव जैसा पहले फूड, राइस, ये सब हमारे यहाँ तो राइस, जैसा राइस का फार्मिंग होता है, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता था, पर अभी तो जैसे राइस मिल जाता है अवेलेबल मार्केट में, तो अल्टरनेटिव तो बहुत ही ऑप्शन हो ही गया अभी के डेट में तो। So Salina, I'm just taking this question ahead. अभी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज एज सच क्या है यूथ के लिए? हाँ, जॉब या अपॉर्चुनिटी उनको सिटी में ही जाना पड़ता है? सिटी में यहाँ पे भी रहते जॉब का पोस्ट, पर कम ही रहते हैं सिटी में। वैसे मैंने जहाँ तक देखा है, जैसे हम लोग के यहाँ जो सिटी में पढ़ाई करके आने के बाद उन लोग जितना हो सके अपना कम्युनिटी के लिए करने के ट्राई करते हैं, तो बहुत कम लोग ही हमारे यहाँ जो हाईली एजुकेटेड है, पर उन लोग का वो है कि आके हमारे कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत है, पर कोई आके वो चीज नहीं दे रहा है। जैसे यहाँ के लोग को इतना ही नॉलेज है कि टीचिंग करना है, डॉक्टर बनना है, इतना नॉलेज है, लाइक जैसा फॉरेस्ट की फील्ड में ऐसा है, ये सब का ज्यादा नॉलेज नहीं रहता उनके पास। पर अभी ये चीज को लेके अभी चेंज आ रहा है। जैसे फर्स्ट स्टेप तो हम लोग को जो रिजर्व में हम लोग को एज अ प्रोटेक्शन स्काउट बनाया है, तो मतलब कोई लोग अभी चाहते कि वो लोग भी फॉरेस्ट के लिए कुछ करो। और जैसा मैंने फिल्मिंग की लाइन से जो मैंने काम किया है, तो बहुत बच्चे लोग भी ऐसा है कि आगे जाके आपका जैसा करना है, मतलब उन लोग को ऑप्शन मिल गया कि हाँ ये भी एक जॉब रहते हैं। यस, जो और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं अभी। मैम एक क्वेश्चन है जस्ट मेरे साइड से। सो ड्यू टू द मतलब राइज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये जो क्लाइमेट चेंज वाली फैक्टर है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो स्पीसीज इन द सेंचुरी दे आर वेरी डेलिकेट व्हेन इट कम्स टू द चेंज इन द क्लाइमेट। सो उसके लिए आपकी मतलब अभी फ्यूचर प्लान क्या है कि उसको कैसे करके टैकल किया जा सकता है? इस बेस पे मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं साइंस के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मेरे पास इसके लिए नॉलेज अभी तक नहीं आया, कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है अभी तक। So Deepam, she is completely, at as of now, she is working on field. तो
just give me a second. जब हम छोटे एरिया में भी काम करने के लिए पूरा सारी अपनी एनर्जी डाल दे, so slowly that will go out and help other part of the biodiversity. So abhi Selena is completely focused about her own community conservation effort and the animals and birds which are present there. तो अगर हम सब हर एक जन अपने अपने एरिया के लिए काम करें तो क्लाइमेट चेंज ओवरऑल holistically we will help one by one. So not necessarily we should think about कि global climate change के बारे में क्या करें और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है. Instead of that you start working for your own community and the biodiversity around. आपके जस्ट सोसाइटी में कौन सी बायोडाइवर्सिटी है, आपके सिटी में कौन सी है, आपके आजू बाजू क्या है, उसके कंजर्वेशन के बारे में अगर हर एक ने सोचा ना तो स्लोली वी विल टैकल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो भी कुछ हो रहा है, इज व्हाट आई थिंक. Fanita, you also had some question? Anita? No, ma'am. Okay. So, any other question? I guess there are no more questions. Okay. So Selena, one last question let me ask you again. Okay. As a woman, आपको कौन से challenges को face करना पड़ता है? एज अभी के डेट में तो लाइक सबको पता चल गया है. जब मैंने फर्स्ट शुरुआत किया था तब थोड़ा बहुत डरा, जैसा लाइक फॉरेस्ट में जाती थी तो बहुत लोग को लगता था कि लाइक तुम लड़की हो, तुम नहीं कर पाओगे. मेरी बहुत लोग ने मतलब ऐसा मजाक में मतलब कंपटीशन ऐसा भी रखा कि जैसा फॉरेस्ट में पेड़ में चढ़ना है, पेड़ में चढ़ के वो एरिया को पार करना है. तो उन लोग बस मेरा साथ ऐसा हुआ था कि मैं स्लीपर में थी, लाइक मैंने शूज नहीं लगाया था और उसने कहा कि बस यहीं पास में जाना है. तो चलो मैं गई शूट के लिए. बाद में बताया उसने चढ़ना है तो उसको लगा मैं नहीं कर पाऊंगी, पर उसके कंपेयर में मैं पहले वहां पहुंच गई. तो ऐसा सब रहते हैं, मतलब उन लोग कंपटीशन देते रहते कुछ ना कुछ चीज में, और उन लोगों को लगता है कि लाइक एक गर्ल नहीं कर पाएगी, ऐसा टाइप से रहते हैं. और अभी के डेट में तो वो सब चेंज हो गया है. और आपके ऊपर कुछ प्रेशर भी रहता है क्या कि नहीं अभी आपको आप लड़की हो तो आपको घर में ही रहना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, या अभी नाउ यू आर ऑफ दैट एज अभी शादी करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें तो आपको भी फेस करनी पड़ती होती होगी. मैम यूजुअली मैं किसी की नहीं सुनती हूँ. लाइक मेरे फैमिली में मैं किसी की नहीं सुनती हूँ. लाइक मैंने आज तक जो भी किया खुद का डिसीजन, उन लोग कभी प्रेशराइज नहीं करते. मेरे फैमिली लोग ये चीज मुझे पसंद है कि उन लोग कभी प्रेशर नहीं करते कि ये करना है वो करना है. लाइक मैं पूरा इंडिपेंडेंटली, मुझे जो करना है मैं अपनी ये चूज कर लेती हूँ. लाइक मैं उन लोगों से परमिशन कभी नहीं मांगती, बस मैं कह देती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ. तो ऐसा प्रेशर तो कभी नहीं पड़ा. So that's really good कि you are motivated for what you want to do and you are clear-headed in this age, and we really thank you for what you are doing, and we really appreciate, proud of you, Selena, and best of luck for your journey. मेरे तरफ से मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहूंगी. लाइक एज अ स्पीकर मैंने कभी किसी के आगे ऐसा स्पीच नहीं दिया है. लाइक मैं स्कूल टाइम से ऐसे थी कि लाइक तुमको थोट बोलना है, नहीं मुझसे नहीं होगा. लाइक ऐसा फियर था, बट आपने पास मौका दिया तो उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं आपको. No, you're most welcome. We are very happy that you can come and talk with our students of Biodiversity Club. So, हमने चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म दिया है. सो प्लीज जो भी लोग हैं अभी
Please take your, it won't take more than 1 minute. Please go and fill up the feedback form. And meantime, Panindra, you can go for vote of thanks too. Sure, ma'am. Thank you so much, Shalina, ma'am. That was really an insightful session. And thank you so much for showing the glimpse of your village community and different spaces that are available at your place by showing through the PPT. It was really exciting for us, and it's really inspiring that at this young age you are doing a lot of stuff, and you suddenly became a kind of inspiration for all the students from our biodiversity cell. And with this session, like it takes us the immense pleasure so that we can share the thoughts which you have shared through this presentation for our friends, and we can also make more people get engaged on this kind of things which you are doing at a very engaged. Being a girl, it is not easy for you to do all this stuff. I mean, facing all the barriers in the society, community, etc. But you are doing a great job, ma'am. Thank you so much for that, and thanks for the wonderful session. And next, I would like to thank Shilpa ma'am, who is encouraging all the students, who is acting like a backbone for all of us during these tough times. And I would also extend my gratitude and to all the students of Biodiversity Cell and our team Shakti from Symbiosis Hyderabad University for being a part of this and encouraging me through all these sessions. And I would like to thank everyone for joining this session. Thank you, one and all.